آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک پریکٹس سیٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو اسی کے متعلق آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈرامہ۔ تو آج کے سیٹ میں ہم ڈرامے سے متعلق سوالات کو دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، ڈرامے کے لیے کس کو شہرت ملی؟ آغاش، طالب بنارسی، بیدی یا منٹو؟ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے، آغاش کاشمیری۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 جو ہے۔ ان کا جو ڈرامہ ہے اسیر حسر یہودی کی لڑکی، یہ بہت ہی خاص ہے۔ سوال نمبر 2، اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سبھی جانتے ہوں گے، آغاش کاشمیری جو ہیں انہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے شیکسپیئر کے نام سے اپنی ڈرامہ کمپنیاں بھی کھولی تھیں۔ کوشچن نمبر 3، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ سلور کنگ آغاش کاشمیری کا مشہور اور معروف ڈرامہ ہے۔ آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 4، ان میں سے کون سا ڈرامہ آغاش کا نہیں ہے؟ اب یہاں پر پوچھا نہیں ہے، اسیر حسر، مہاراستین، حسرت الارض، مرشید شاہ، تو یہاں پوچھا گیا ہے نہیں ہے، تو اس کا درست جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن 3، یہ ان کا ڈرامہ نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 5، آغا حشر کاشمیری کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آغا محمد حشر کاشمیری۔ ان کے نام کے پیچھے اس لیے لگا کیونکہ یہ پیدائش تو ان کی بنارس میں ہوئی تھی، لیکن ان کے والد صاحب جو تھے وہ کشمیری جو شال ہوتی ہیں ان کا کاروبار کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، آغا حشر کاشمیری کب پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، 14 اپریل 1879۔ 14 اپریل 1879 کو ان کی پیدائش بنارس میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ بنارس میں۔ کوشچن نمبر 7، خوبصورت بلا میں کتنے ابواب ہیں؟ خوبصورت بلا جو ہے وہ ان کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، تو اس میں ابواب پوچھے گئے ہیں کہ کتنے ابواب پر وہ مشتمل ہے، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4۔ کوشچن نمبر 8، سمسا، تزور، سہیل، طاہرہ اور کلتو کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، خوبصورت بلا۔ خوبصورت بلا کس چیز کو بے نقاب کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، حسن پرستی کی خرابی کو۔ کوشچن نمبر 10، خوبصورت بلا کے مکالمے کن زبان میں ہیں؟ مطلب کہ جو اس کے ڈائیلاگس ہیں وہ کس زبان میں لکھے گئے ہیں، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، عوامی اردو۔ کوشچن نمبر 11، خوبصورت بلا کا اسٹیج پر کیا اثر رہا؟ مطلب اس کو اسٹیج پر مقبولیت ملی تھی یا نہیں، تو یہ بے حد مقبول ہوا تھا۔ آپشن 3 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 12، خوبصورت بلا میں حسن کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ رحمت سے، بلا سے، دوست سے یا مقدر سے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، بلا سے۔ کوشچن نمبر 13، ڈرامہ خوبصورت بلا کا موضوع کیا ہے؟ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ خوبصورت بلا ہی موضوع ہے، لیکن خوبصورت بلا کس کو کہا گیا ہے، مطلب پوشیدہ انداز میں، تو وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، حسن اور ہوش کی تباہی۔ کوشچن نمبر 14، ڈرامہ خوبصورت بلا کس دور میں لکھا گیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، دوسرا جو دور تھا اس میں لکھا گیا، 1906 سے لے کر 1909 تک۔ کوشچن نمبر 15، خوبصورت بلا کس ادیب کا مشہور ڈرامہ ہے؟ تو یہ تو ہم ابھی آگے دیکھ ہی چکے ہیں، یہ آغا حشر کاشمیری کا مشہور ڈرامہ ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 16، آغا حشر کے آخری ڈرامے کس نوعیت کے تھے؟ انہوں نے سماجی، مذہبی، خاص کر انہوں نے اصلاحی کے لیے بہت سے ناول لکھے، وہ ڈرامے لکھے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے جو ڈرامہ نگار تھے انہوں نے بھی اس طرف توجہ آزمائی تھی، تو انہوں نے اصلاحی ناول زیادہ لکھے ہیں۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 17، آغا حشر کا ڈرامہ رستم و سہراب کس دور میں لکھا گیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، آخری اصلاحی دور میں۔ کوشچن نمبر 18، آغا حشر کا کون سا ڈرامہ ہندی میں بھی مقبول ہوا؟ آغا حشر کے جو ڈرامے تھے وہ سبھی بہت مشہور اور مقبول ہوئے ہیں، لیکن ہندی کا بھی کون سا ان کا ڈرامہ مشہور ہوا؟
तो वो है मुरलीधर। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, आगा हश्र ने ज़्यादातर किस ज़बान में ड्रामे लिखे? इन्होंने उर्दू में ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं। उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, आगा हश्र ने किस उस्ताद से झड़प के बाद ड्रामा निगारी शुरू की थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मेहंदी हसन एहसन लखनवी से। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रामा खूबसूरत बला के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, आगा हश्र काश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रामा खूबसूरत बला कब लिखा गया? अभी दौर पूछा गया था आपसे कि ये किस दौर में लिखा गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कब लिखा गया, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पर 1906 से 1909 तक लिखा गया था। 1909 ऑप्शन में है, तो आप 1909 पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, खूबसूरत बला का कौन सा किरदार नहीं है? नेकी, बदी, हरी या शमसा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, हरी जो है वो इसका किरदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, शमसा किस को कत्ल कर देने का हुक्म देती है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, सोहेल को कत्ल करने का हुक्म देती है। तगज़ुल बेग किसका वफादार था? क्वेश्चन नंबर 25, तो वो शमसा का वफादार था। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, जो आज जानते हैं दुनिया की हो तुझको, ये बयान किसका है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, नेकी का। ये बयान इस खूबसूरत बला में ये मुकालमा है। ये जो शमसा होती है उससे कौन कह रहा होता है? नेकी कह रही होती है। क्वेश्चन नंबर 27, तू ना होती तो खुदा को पैदा ही ना करता, तो किसको पैदा नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 27, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, जहन्नम। क्वेश्चन नंबर 28, मैं इन लोगों में नहीं हूँ जो पीठ पीछे बुराई का इजहार करते हैं। ये किससे कहा इस ड्रामे में? ये पूछा जा रहा है। तो ये बयान है तौफीक का। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, खूबसूरत बला में ईमानदार किरदार कौन सा है? तौफीक का, कतलू का, तगज़ुल बेग का या शमसा का? तो ये तो इसका वफादार होता है, तो ये ईमानदारी का किरदार नहीं हो सकता। तो तौफीक जो है वो ईमानदारी का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने अपने भाई को कत्ल करके हुकूमत संभाली? मतलब उसको हुकूमत की शमसा को इतनी लालच थी कि उसने अपने भाई का भी कत्ल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, शमसा। क्वेश्चन नंबर 31, खूबसूरत बला का आगाज़ किसके कलाम से होता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, नेकी और बदी के कलाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मरहूम बादशाह वफादार कौन होता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, तौफीक। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रामा खूबसूरत बला कहाँ से शाया हुआ? दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से या कलकत्ता से? तो ये कलकत्ता में से शाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रामा खूबसूरत बला किस प्रेस से शाया हुआ? अब यहाँ पर प्रेस पूछा जा रहा है, तो ये ताज प्रेस से शाया हुआ था। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, हर कुमारी और अपराधी आगा हश्र ने किस ज़बान में लिखे? तो ये इनके हिंदी ज़बान के मशहूर ड्रामे थे। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। सॉरी, बंगली का है ये। ऑप्शन 3 जो है ना वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, आगा हश्र का सबसे मशहूर तर्जुमा शुदा ड्रामा कौन सा है? इन्होंने कई ड्रामों का के क्या किए हैं? तर्जुमे भी किए हैं, और जब उन्होंने तर्जुमा किए तो वो और भी ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुए जो उनके ज़रिए तर्जुमे किए गए थे। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, यहूदी की लड़की। क्वेश्चन नंबर 37, आगा हश्र की थिएट्रिकल कंपनी का क्या नाम था? तो इनकी जो थिएट्रिकल कंपनी थी, इन्होंने शेक्सपियर के नाम से कंपनी बनाई थी, और इसलिए इन्हें उर्दू ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, आगा हश्र काश्मीरी कहाँ मदफन हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 39, आगा हश्र को कुरान पाक के कितने पारे याद थे? इसका दुरुस्त जवाब होगा 16। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, आगा हश्र काश्मीरी
कब वफ़ात पा गए। अभी आपसे पूछा गया था कि कहाँ पर मदफन है उनका, तो वो लाहौर में है। और उन्होंने कब वफ़ात पाई? 1935 में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा था? यहूदी की लड़की जो है वो इनका ख्वाब हस्ती, ख्वाब हस्ती जो है वो इनका पहला ड्रामा है। यहूदी की लड़की, रुस्तम व सहरा, ख्वाब हस्ती, अच्छा ये मैंने देखा नहीं था, सॉरी, आफ्ताब मोहब्बत। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ये इनका पहला ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 42। आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक़ किस शहर से है? लखनऊ से, बनारस से, दिल्ली से या लाहौर से? इनका ताल्लुक़ बनारस से है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इनकी पैदाइश यहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43। आगा हशर काश्मीरी को किस लक़ब से याद किया जाता है? उर्दू के गालिब, उर्दू के इकबाल, उर्दू के शेक्सपियर, उर्दू के मीर। इनको अभी हमने देखा था उर्दू के शेक्सपियर के नाम से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। आगा हशर काश्मीरी कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये कहाँ पैदा हुए थे? बनारस में। क्वेश्चन नंबर 44 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 1879 में। क्वेश्चन नंबर 45। अफजल और परवीन आगा हशर काश्मीरी के किस ड्रामे के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 45 इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, सिल्वर किंग। क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन आगा हशर का हम असर नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हम असर नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मेहरून जी आराम। क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सा आगा हशर का ड्रामा नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, पर्दा ग़फ़लत। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से आगा हशर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा अलमिया है? अलमिया ड्रामा पूछा जा रहा है कौन सा है, तो वो है रुस्तम व सहरा। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49। आगा हशर ने किस अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ीन के ड्रामों से मुतासिर होकर तख्लीक़ात लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 49 इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, शेक्सपियर से इन्होंने मुतासिर होकर ड्रामे लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 50। आगा हशर ने थिएटर में काम का आगाज़ कहाँ से किया था? इन्होंने ये बनारस में, मुंबई में भी किया, कलकत्ता में भी किया, लखनऊ में भी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आगाज़ कहाँ से किया था, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 51। आगा हशर का आखिरी ड्रामा क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, तुर्क़े मोहब्बत, और पहला था आफ्ताब मोहब्बत। क्वेश्चन नंबर 52। आगा हशर के ड्रामों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सिन्फ शायरी क्या है? उन्होंने किस शायरी में सबसे ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं, किस सिन्फ में? तो मसनवी में। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53। आगा हशर के कौन से ड्रामे को फिल्म में ढाला गया है? अनारकली, नेकी और बदी, रुस्तम व तुर्की मोहब्बत। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, अनारकली। आप जानते ही होंगे इस पर फिल्म बनी थी और ये बहुत ही मशहूर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54। आगा हशर का सबसे मशहूर ड्रामा कौन सा है? आँख का नशा, ये इनका सबसे मशहूर ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 55। उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 55 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, वाजिद अली शाह ने मंजूमात ड्रामों की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 56। किसने शेक्सपियर के ड्रामों और डोनांग की शक्ल में ढाला था? क्वेश्चन नंबर 56 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, एहसन लखनवी। क्वेश्चन नंबर 57। उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए? तो लखनऊ में सबसे पहले ड्रामे लिखे गए। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58। आगा हशर और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? आगा हशर और उर्दू ड्रामा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार इम्तिहान में पूछी भी गई है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अंजुमन आरा अंजुम। क्वेश्चन नंबर 59। बीरम और अरसलान आगा हशर के किस ड्रामे के किरदार हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सफ़ेद खून। क्वेश्चन नंबर 60। तुर्क के हूर किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, आगा हशर काश्मीर।
تو بچوں یہ ڈرامے اور آغا حشر کاشمیری سے متعلق آج کا ہمارا پریکٹس سیٹ تھا، سوالات تھے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ اپنے آنے والے امتحان میں ان سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔